السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے شندور پولو فیسٹیول کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ چیئرمین این ڈی ایم میں اور سوئس وزیر خارجہ نے یادداشت پر دستخط کیے۔ مستقبل میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے دونوں ملک ٹیکنالوجی اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکیں گے۔ خطے میں تناؤ اور جنگوں پر وسائل ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کشمیر سمیت دیگر تنازعات کا خاتمہ خطے میں دیر پام کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نتھیا گلی میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کا قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، آگاہی عام کرنے، زندگیوں اور روزگار کے تحفظ کے لیے مل کر کام کیا جائے گا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کا کام سرحدوں اور قومیتوں سے بالاتر ہے، عالمی ذمہ داری ہے جس کے لیے اتحاد و یگانگت اور اجتماعی کاوش درکار ہے۔ سوئس وزیر خارجہ کا تقریب سے خطاب۔ ملک کی تقدیر کے ضامن نوجوانوں اور طلباء کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرنے سے زیادہ کوئی اور خوشی نہیں۔ موجودہ اسکیم کے تحت مرحلہ وار 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ لیپ ٹاپس نے طالب علموں کو ان کی پڑھائی، کاروبار اور کریئر بنانے میں مدد کی۔ یہ اسکیم گیم چینجر ثابت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فوجداری کیس میں کارروائی کا آغاز 12 جولائی سے ہوگا۔ آئندہ سماعت پر گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کر لیا گیا۔ نواز شریف کو نااہل کرنے والے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ 2018 میں ایک اناڑی کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دی گئی جس نے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کر دیا۔ اتحادی حکومت کی کوششوں سے معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں سینما ہاؤس اور ڈیجیٹل ریڈیو لیب۔ اقدام کا مقصد سستی سینما رسائی متعارف کروا کر پاکستان میں مووی میجک کی رونق کو بحال کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان فلمی صنعت میں نئی روح ڈالنے اور جدت کے لیے نیشنل ڈیجیٹل آرکائیو، موسیقی کی دھنوں کی میپنگ اور عالمی معیار کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز کا آغاز کر رہا ہے۔ مریم اورنگزیب۔ شہداء ہمارا فخر۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا شہید میجر ثاقب باجوہ، نائک علی باقر اور سپاہی گل روف کے لواحقین کو ٹیلی فون۔ شہداء کو خراج عقیدت، خاندانوں کے جذبہ حب الوطنی اور اثار کو سلام پیش کیا۔ شہداء کے لیے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کراچی کے طلباء اور اساتذہ کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت، شرپسندوں کے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ نو مئی کا ایک اہم مطلوب شرپسند گرفتار۔ محمد ارسلان فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں سرگرم رہا۔ شرپسند کے والدین کی بیٹے کی شرپسندی کی شدید مذمت۔ نوجوان قوم کا اثاثہ ہیں، ان کو زہریلے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی میں نئی روح پھونکنے والے برہان وانی کا 7واں یوم شہادت۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، جگہ جگہ قابض افواج کے پہرے۔ حریت قیادت کا شہید رہنما کو خراج عقیدت، جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بلدیاتی انتخابات کے دوران شدید جھڑپیں، 11 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ مشتعل افراد نے بیلٹ باکس چھین کر پولنگ سٹیشنز کے باہر آگ لگا دی۔
अमेरिका का यूक्रेन को मोहलिक क्लस्टर बॉम्ब देने का ऐलान। यूक्रेन को असलहे की जरूरत के पेश नजर क्लस्टर बॉम्ब देने का फैसला किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन क्लस्टर बम्स के इस्तेमाल के हामी नहीं हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। बुहैरा असवद अनाज मुआहदे में तौसी के हवाले से गुफ्तगू। यूक्रेन जंग के 500 दिन मुकम्मल, 9,000 से ज्यादा शहरी हलाक, 16,000 जख्मी। हलाक होने वालों में 500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। लिमान शहर में रूसी रॉकेट हमले के नतीजे में 8 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। यूक्रेन का दावा। अमेरिका ने कीमियाई हथियारों के आखिरी जखीरे को भी तबाह कर दिया। रूस और शाम समेत दूसरे ममालिक भी केमिकल हथियारों के कन्वेंशन का एहतराम करें। कीमियाई हथियारों से पाक मुस्तकबिल के लिए तमाम ममालिक को अपने अज़्म की तजदीद करना होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन। मखलूक़े खुदा की दादरसी और खिदमत की रोशन मिसाल अब्दुस्सत्तार ईधी की 7वीं बरसी। इंसानियत की फलाह के लिए ईधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। खिदमत खल्क के शोबे में ग्रां कदर खिदमात पर कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। ईदी साहब जैसे लोग मुआशरे की अखलाकी कदरों की सही तौर पर नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अगले 24 घंटे के दौरान गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, बहावलनगर, ओकाड़ा और ज़ेरी सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कश्मीर, डेरा गाजी खान, कोहलू, सिब्बी और बारखान के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी की पेशगोई। दुनिया के बुलंदतरीन पोलो ग्राउंड पर शंदूर पोलो फेस्टिवल। दूसरे रोज गिलगित बल्तिस्तान बी ने चित्राल बी को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। सयाहों की बड़ी तादाद फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज। फाइनल में कल चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीम्स मध्य मुकाबले। मालदीव में साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स की शानदार कारकर्दगी। शहजाद कुरैशी ने भारतीयों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। इब्राहिम खान और शाहिदुल्लाह ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज रात श्रीलंका रवाना होगी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 जुलाई से गाल और दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत से कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी ताउन के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। नथिया गली में तकरीब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। पायदार अमन के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्फ़िया तलब मसाइल का हल ज़रूरी है। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। गवर्नर हाउस नथिया गले में पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। स्विट्जरलैंड के वज़ीर ख़ारजा अग्नाज़ोयोव कासेस और एनडीएमए के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मफाहमती याददाश्त के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान कुदरती आफात और इनके मुमकिना नुकसानात की पेशगोई, फौरी इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के इक़दामात में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त मुस्तक़बिल में इस चैलेंज से निपटने में मुआवन साबित होगी। We would be looking forward to cooperation from Switzerland in terms of getting advanced warning system and other facets which really would secure Pakistan as much as possible from natural disasters. वज़ीर आज़म ने पुरअमन मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड की दिलचस्पी को काबिल कदर करार देते हुए कहा कि हम कशीदगी के हामिल नहीं हो सकते। हमें अपने वसाइल अपने आवाम की तरक्की पर खर्च करना है। Absolutely, we are convinced that we should commit our resources in investing
in the well-being of Pakistan, and of course the leadership on other side should also feel the same way. But to have lasting peace in this part of the world, we must resolve our issues, including Kashmir. स्विट्जरलैंड के वज़ीर ख़ारजा अग्नाज़ोयोव कासेस ने दोनों मुल्कों के दरमियान समझौते को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने में अहम शराकतदारी करार दिया। It is a global responsibility that requires unity and collective action. Switzerland and Pakistan will work hand in hand to raise awareness and protect the lives and livelihoods of our citizens. पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए समझौता वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के डिजास्टर मैनेजमेंट को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के विजन के तहत एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म का स्विट्जरलैंड के वफ्द के साथ सियाहत के शोबे में तावन पर भी तबादला ख्याल हुआ। वफ्द का कहना था कि पाकिस्तान मजबूत तारीखी विरसे और खूबसूरत नज़ारों की सरजमीन है। उन्होंने नतिया गली के पुरफज़ा मकाम की तारीफ की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान तहाइफ का तबादला भी हुआ। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेरे लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने से ज़्यादा खुशी कोई नहीं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के मुल्क गिर आगाज़ ने वो सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है जो प्रोग्राम पंजाब में मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि लैपटॉप्स ने तालिब इल्मों को उनकी पढ़ाई, कारोबार और करियर बनाने में मदद की। लैपटॉप स्कीम वाकई गेम चेंजर साबित हुई, जिसकी कामयाबी की शानदार कहानियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत पाकिस्तान के तलबा में मरहलावार 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी की तरह अब भी शफाफियत और मेरिट लैपटॉप्स प्रोग्राम के रहनुमा उसूल होंगे। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी केस में कार्रवाई का आगाज 12 जुलाई से होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हुमायूं दिलावर ने दरखास्त को काबिल समात करार देते हुए महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकील को वक्त दिया, लेकिन उनकी जानिब से दलाइल नहीं दिए गए। समात के आगाज में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और समात 10 जुलाई तक मुलतवी करने की 2 दरखास्तें दायर की गई। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं, कोई एक तारीख बताएं जब मुलजिम तोशाखाना केस में अदालत में पेश हुए हों। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से कहा कि इस केस पर हर पाकिस्तानी की नज़र है। जब से ये केस आया है दीगर केसेस रुक कर रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर एतराज़ उठा दिया। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल देते हुए 21 अक्टूबर 2022 का इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 1 हफ्ते में फैसले करने का ऑर्डर पढ़ा। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के ऑर्डर में मुतफ़िक़ा तौर पर लिखा है कि मुलज़िम ने गलत बयानी से काम लिया है और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कानूनी प्रोसीडिंग्स शुरू करने का कहा गया। अदालत ने 12 जुलाई को गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 2018 में एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क में मुआशी तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले चेहरे सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है और स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। अब अवाम को मुल्क की खुशहाली के लिए मैदान में आना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि रेडियो पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को आलमी मयार की तफरीह फ्राहम करने, फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नई रूह डालने और जिद्दत के लिए नेशनल डिजिटल आर्काइव, पाकिस्तानी मूसीकी की धुनों की मैपिंग और आलमी मयार के पॉडकास्ट स्टूडियोज का पाकिस्तान भर में आगाज कर रहा है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर में सिनेमा हाउस और डिजिटल रेडियो लैब का मकसद सस्ती सिनेमा रसाई मुतारिफ करवा कर पाकिस्तान में मूवी मैजिक की रौनक को बहाल करना है। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान से स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है। इस मौके पर शहरी रहमान ने पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती बहरान, क्लाइमेट फाइनेंस के चैलेंज, हुकूमत के फ़ाल इक़दामात और मनसूबों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2025 तक पानी की किल्लत का शिकार हो जाएगा। हमारे ग्लेशियर्स पिघलने में 300% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। हम इस वक्त लाहौर में शदीद मानसून बारिशों का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर नहीं। पाकिस्तान अब भी जनीवा में किए गए वादों का मुंतज़िर है। दोनों रहनुमाओं ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने और माहौलियाती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया।
वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिशियल SMS सिर्फ 8171 से ही आता है। इस प्रोग्राम को मजीद शफाफ बनाने के लिए अब 90 लाख बेनिफिशरीज को अदायगियां बैंक अकाउंट्स के जरिए की जाएंगी। तफसील बताएंगे वकार हैदर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 15 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर मुमलिकत बराए तखफीफ गुर्बत फैसल करीम कुंडी कहते हैं ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का इरादा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था, जिसे 2008 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में पाया तकमील तक पहुँचाया। अब तमाम बेनिफिशरीज को अदायगी बैंक के जरिए की जाएगी। 90 लाख ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं, मुस्तकबिल में और जो स्कीमें आएंगी वो सारे कम से कम इस कार्ड के ज़रिए आपको जो है, चाहे उसमें हम हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, चाहे उसमें हम यूटिलिटी स्टोर की फैसिलिटीज़ दें, चाहे और भी जो स्कीमें आएंगी फ्यूचर में दवाइयों के हवाले से जो भी होगी, वो इस कार्ड के ज़रिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसमें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर है, जो पहले एक दफ़ा बेनज़ीर कार्ड लॉन्च हुआ था, उसी तरीके से हमने ये कार्ड भी लॉन्च किया है। फैसल करीम कुंडी ने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज की तादाद 76 लाख से बढ़कर 90 लाख हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत खुसूसी बच्चों की भी मुआवनत की जाएगी। पहले 82,000 स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट्स को हम स्कॉलरशिप्स दे रहे थे, जो कि अभी तकरीबन हम 92,003 जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हम जो है वो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, लेकिन हम इसको अब लिंक अप करने जा रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री के साथ, BSP के बेनिफिशरी के साथ, ताकि उनके बच्चों को हम अंडर ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटीज़ में भी हम उनको स्कॉलरशिप दें। हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो कि हमारी हामिला ख़वातीन और 2 साल के बच्चे के लिए जो हमने एक स्कीम शुरू की थी, वो भी शुरू है। वज़ीर मुमलिकत बराए तखफीफ गुर्बत फैसल करीम कुंडी ने बताया कि गुज़श्ता हुकूमत ने गैर ज़रूरी तौर पर 9 लाख कार्ड्स ब्लॉक किए थे, जिनमें से तकरीबन 2.5 लाख कार्ड्स खुल चुके हैं, जबकि दीगर की जांच पड़ताल की जा रही है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वज़ीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में उम्मीदवारों को टिकट देने समेत तमाम मामलात मुस्लिम लीग नून के कायद की मुशावरत से होंगे। मुआविन खुसूसी ने कहा कि रूसी तेल का हसूल हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है और जल्द ही अवाम इस सस्ते तेल से मुस्तफ़िद हो सकेंगे। इससे पहले अता तारड़ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के मौके पर अपने खिलाफ कायम मुकदमे के सिलसिले में वज़ीराबाद की मकामी अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें 15 अगस्त को दोबारा तलब किया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कयानी कहते हैं कि मौशी तबाही के मुजरिम खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा कहने वाले का IMF के मुआहदे की हिमायत करना एहसान नहीं है, कौम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा कि IMF का सख्त शराइत पर मुआहदा किया तोड़ा और इक़्तिदार जाता देकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला, फिर IMF का मुआहदा बहाल होते देखकर खत लिखकर साजिश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने ही पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से निकाला। झूठ बोल बोल कर हर दफ़ा हर किसी को हर वक्त पागल नहीं बनाया जा सकता। सुबह, दोपहर और शाम सर पे डब्बा बाल्टी और डस्टबिन रखकर NRO की मिन्नतें फॉरेन एजेंट और तोशा खाना चोर कर रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाक फौज के शोहदा के खानदानों से फ़ोन पर गुफ्तगू की और दिफाए वतन के लिए उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने मेजर साकिब बाजवा, नाइक अली बाकिर और सिपाही गुल रऊफ के वरसा से इजहार अफसोस किया। उन्होंने शोहदा और उनके खानदानों के जज्बा हुब्बुल वतनी और इसार को सलाम पेश किया। सदर मुमलिकत ने शोहदा के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान ईशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों को पूरी कौम याद कर रही है। ऐसे ही एक शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम हैं जो अपनी शहादत के 16 साल गुजरने के बावजूद हमारे दिलों में जिंदा हैं। तफसील बता रहे हैं अम्माद अवान। शहीद हारून इस्लाम उस कौम के बेटे हैं जिन्होंने फ़र्ज के दौरान जुर्रत व बहादुरी का नमूना बनकर दिखाया। 7 जुलाई को शहीद अफसर की 16वीं शहादत की बरसी मनाई गई। उन्होंने 11 मार्च 1998 को सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। शहीद हारून इस्लाम 17 जनवरी 1991 को नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में तैनात हुए। 12 नवंबर 1993 को पाकिस्तान आर्मी की एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। शहीद हारून इस्लाम ने अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान सियाचिन, फाटा और मुख्तलिफ महाजों पर ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और खूब नेकनामी कमाई। पाक आर्मी की ज़रार फोर्स की क़यादत करते हुए 7 जुलाई 2007 में ऑपरेशन सनराइज के दौरान आपने जामे शहादत नोश किया, जिसके एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल शुजात से नवाजा गया। शहीद अफसर की 16वीं बरसी आज इस याद के साथ मनाई गई कि लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम को हम भूले नहीं। अम्माद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही राव मोहम्मद उमर शहीद ने दिफाई पाकिस्तान की खातिर अपनी जान कुर्बान की। जुर्रत व बहादुरी के एतराफ़ में सिपाही राव मोहम्मद उमर शहीद को तमग़े बिसालत के एजाज़ से भी नवाजा गया। 9 मई को जो वाक़या पेश आया था वो बहुत सा दिन था। शहीदों की जो तस्वीरें जलाई गई थी, उनकी बेहुरमती की गई थी। हुकूमत पाकिस्तान से अभी हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या शहीदों की पाकिस्तान में कोई कदर नहीं है? 6 बजे का टाइम था। कॉल आई मेरे पास, कहने लगे बच्चों का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। छुट्टी आता था, ऐसे कहता था जिस वक्त अल्लाह करे मैं खैरी से यहाँ से चला जाऊँ, वहाँ से मैं डब्बे में आऊँ। बस उसकी यही दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन हमें परेशानी होती थी। मैं उससे बार बार यही बात करती थी, आप ऐसे क्यों बोलते? कहते नहीं मुझे शौक है। मैंने कहा पीछे बच्चों का नहीं ख्याल? कहते नहीं, बच्चों का क्या ख्याल, अल्लाह ख्याल करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में हाई प्रोफाइल केसेस में जमानत पर रिहा होने वालों की जमानतें मनसूख कराने के लिए अपीलें दायर करने का फैसला किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ में मुलव्विस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का सख्त नोटिस लेते हुए शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। 9 मई की शरंगेजी में मुलव्विस एक और इंतहाई मतलूब शरपसंद मोहम्मद अरसलान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शरपसंद के वालिदैन ने बेटे के 9 मई की शरंगेजी में मुलव्विस होने पर इजहार मजम्मत किया है। मेरा नाम जी मोहम्मद सिराज है और जो गिरफ्तार हैं उनका नाम है मोहम्मद अरसलान।
वो मेरे बेटे हैं। ये जो कुछ हुआ, मैं तो इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। जो कुछ हुआ ये गलत हुआ, नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक पैगाम है कौम के नाम तमाम लोगों से है कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को इन सियासतदानों से महफूज करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल खातिर जो है ना इन लोगों से दूर रहें। मेरा नाम यास्मीन है, जो गिरफ्तार है वो मेरा बेटा है। कि 9 मई के वाक़यात में जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है। कि नौजवान नस्ल है, उन्होंने बच्चों का ब्रेन वॉश इस कदर किया हुआ था कि बच्चों को उकसाया हुआ था। तो हम यही पैगाम दूसरे लोगों को भी देते हैं कि ऐसे सियासी जगहों से दूर रहना चाहिए। उधर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची के तलबा और असातिज़ा ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ्द ने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए शरपसंदों, इनके सहूलतकार और मास्टर माइंड्स को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। हम कराची से यहाँ पे आए हैं, जो दिल खराश मनाज़र देखने में आए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं, ऐ राए हक के शहीदों। मुझे इतना अफसोस हुआ ये फिज़िकली इस बिल्डिंग को, इस प्रेमिसेस को विज़िट करने के बाद, और मेरे कुलीग जो हैं उन्होंने भी इसका इजहार किया। हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो आइडेंटिफाइड हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। हेग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी कानूनी जीत। बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत ने भारत की जानिब से किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों की तामीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान को भारत की तरफ से दरियाई जेहलम पर किशन गंगा और दरियाई चनाब पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों की तामीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। भारत की जानिब से इन तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने पर पाकिस्तान ने 2016 में सिंतास मुआहदे के तहत एडहॉक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के क़याम की दरख्वास्त की। दूसरी जानिब भारत ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए एक गैर जानिबदार माहिर की तकर्रुरी के लिए दरख्वास्त कर दी। दो मुतवाज़ी अमल से मुतज़ाद नतायज आने के खदशे के पेश नज़र आलमी बैंक ने दोनों मुल्कों की दरख्वास्तों पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। 6 साल न इत्तफ़ाक़ राय हुआ और न ही सालसी अदालत का क़याम हुआ। इस दौरान भारत ने किशन गंगा मंसूबे की तामीर मुकम्मल कर ली। आलमी बैंक ने 2022 में सालसी अदालत और गैर जानिबदार माहिर का तकर्रुर किया, तहम भारत ने बाइकआउट करते हुए सालसी अदालत की अहलियत ही को चैलेंज कर दिया। सालसी अदालत ने 6 जुलाई को मुत्तफ़क़ा फैसले में करार दिया कि वो पाकिस्तान के एतराज़ात पर गौर करने और फैसला करने की न सिर्फ मजाज है बल्कि अगले मरहले में वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे की डिज़ाइन और ऑपरेशन पर माजी के फैसलों के कानूनी असरात का जायजा भी लेगी। सालसी अदालत की कार्रवाई से कबल 25 जनवरी 2023 को भारत ने पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर सिंतास मुआहदे पर नजरसानी और तरमीम पर मुज़ाकरात के लिए नोटिस भी भेजा था। ये बात काबिल जिक्र है कि सिंतास मुआहदे में किसी फरीक को मुआहदे में तरमीम या मनसूखी के इख्तियार की कोई शिक नहीं है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में मारूफ नौजवान रहनुमा शहीद बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की 7वीं बरसी पर मुकम्मल हड़ताल की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बुरहान वानी और तहरीक आज़ादी कश्मीर के दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए दी थी। काबिज़ इंतज़ामिया ने लोगों को बुरहान वानी के घर जाने और उनके अहल खाना से इजहार यकजहती करने से रोकने के लिए तराल कस्बे में बड़ी तादाद में भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। भारतीय फौज और पुलिस ने श्रीनगर और दीगर इलाकों में दुकानदारों को मुतरब्बे किया था कि वो आज अपनी दुकानें खुली रखें वरना उन्हें संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। ताहम धमकियों की परवाह न की और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपनी दुकानें बंद रखीं। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बुरहान वानी के मावराए अदालत कत्ल के बाद से अब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने 40 खवातीन समेत 1821 कश्मीरियों को शहीद किया है। इस अरसे के दौरान मकबूजा इलाके में भारतीय फौज की तरफ से पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की वजह से कम अज कम 29,984 अफराद जख्मी हुए।
آزاد کشمیر میں برہان وانی شہید کا 7واں یوم شہادت یوم مزاحمت کے طور پر منایا گیا۔ دیکھتے ہیں عدیل احمد خان کی یہ رپورٹ۔ 1994 کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پیدا ہونے والے برہان مظفر وانی میں بچپن ہی سے جذبہ آزادی بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور کشمیریوں کی غلامی کا شدت سے احساس تھا۔ لڑکپن شروع ہوتے ہی برہان مظفر وانی نے اپنے اندر کے جذبات کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ تحریک کے روایتی طریقوں کے بجائے برہان وانی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایک طرف تو بھارتی قابض افواج کی ریاستی دہشت گردی کو اقوام عالم کے سامنے بے نقاب کرنا شروع کیا، تو دوسری جانب کشمیریوں میں تحریک آزادی کا نیا جذبہ بیدار کیا اور تحریک آزادی کو جلا بخشی۔ برہان وانی جو ہے وہ کشمیر کی اس نسل کا نمائندہ ہے جس نے بھارتی جبر کے سائے تلے آنکھ کھولی ہے اور اس نے اس تحریک کو نئی جلا بخشی۔ وہ کشمیر کی تحریک کے پوسٹر بوائے تھے جنہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو اس تحریک میں انوالو کیا۔ برہان وانی نے ہندوستان کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت کو یہ نوخیز آزادی پسند کسی قہر کی مانند نظر آنے لگا، جس کا قصور فقط حق خود ارادیت کے لیے نوائے حریت بلند کرنا تھا۔ شہادت کے بعد بھی اب دیکھیں آپ پوری دنیا میں برہان وانی ایک نام بن چکا ہے، ایک تحریک آزادی کشمیر کی پہچان بن چکا ہے۔ برہان وانی کا 7واں یوم شہادت آزاد کشمیر میں یوم مزاحمت کے طور پر منایا گیا۔ اس سلسلے میں مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں 313 نوجوانوں کے منظم دستے نے شہید برہان وانی کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر شہدائے کشمیر کے ورثاء نے نمناک آنکھوں کے ساتھ برہان شہید سمیت دیگر شہداء کی تصویروں پر گل پاشی کی۔ سربکف نوجوانوں نے علمدار چوک سے برہان وانی شہید چوک تک مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ کشمیر کی تحریک آزادی میں نئی روح پھونکنے والے بہادر کشمیری رہنما شہید برہان مظفر وانی کی 7ویں برسی کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل بتائیں گے نعیم الاسد۔ شہید نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی برسی کی مناسبت سے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ اور کشمیر لبریشن کمیشن کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ شرکاء نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اہم دن ہے اور ان کی شہادت جو ہے یہ عظیم شہادت ہے۔ انہوں نے اس تحریک کو ایک نئی روح پھونک دی۔ جس طرح اس نے ہندوستان کے 9 لاکھ فوجیوں کو لوہے کے چنے چبائے، وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ کشمیر کے نوجوانوں میں جو جذبہ آزادی ہیں، جذبہ حریت ہیں، وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر بسنے والے جو کشمیری ہیں وہ برہان وانی شہید کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مشیر امور کشمیر قمر الزمان قائرہ نے برہان مظفر وانی شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ نڈر اور بہادر نوجوان نے اپنی شہادت سے تحریک حق خود ارادیت کشمیر میں نئی روح پھونکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے تمام تر مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ برہان وانی اور دیگر لاکھوں شہداء کے مشن کی تکمیل تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ نعیم الاسد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بلدیاتی انتخابات کے دوران جھڑپوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ ریاست انتخابی مہم کے دوران سیاسی تشدد کے لیے انتہائی بدنام ہے۔ مغربی بنگال کی پولیس فورس کے ایک سینئر آفیسر کا کہنا ہے کہ ریاست بھر میں پولنگ کے دوران متعدد ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ مخالف پارٹیز نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ مرنے والوں میں سے 5 کا تعلق ریاست کی حکمران ترنمول کانگریس پارٹی سے، جبکہ 2 افراد کا تعلق بی جے پی اور مغربی بنگال کی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے ہے۔ حریف پارٹی کے کارکن لاٹھیوں کے ساتھ سڑکوں پر گھومتے رہے۔ متعدد مشتعل افراد بیلٹ باکس چھین کر پولنگ اسٹیشن سے باہر لے گئے اور انہیں آگ لگا دی۔ مقامی پولیس نے ووٹر سے 200 سے زیادہ کروڈ بم بھی ضبط میں لیے ہیں۔ ریاستی الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ ووٹوں میں دھاندلی، پولنگ بوتھ میں مداخلت اور تشدد جیسے واقعات کی 1300 سے زائد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ مغربی بنگال پر 2011 سے ترنمول لیڈر ممتا بنرجی کی حکومت ہے۔
वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हुकाम को हिदायत की है कि ML1 मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि ML1 रेलवे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इजलास में वफाकी वजीर को बताया गया कि रेलवे स्टेशन और रेलवे तनसीबात पर ब्रांडिंग प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई मरहले में 15 कोचेज, 5 रेलवे स्टेशन और 3 बिल बोर्ड पर काम किया जाएगा। साद रफीक ने हिदायत की कि रेलवे के पैदावारी यूनिट्स को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार की जाए। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। इस मकसद के लिए मुमकिन वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। एबटाबाद के नवाही इलाके में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। हज़ारा डिवीजन में सबसे ज्यादा तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। इस मौके पर वफाकी वजीर ने पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 10 करोड़ 24 लाख की ग्रांट देने का ऐलान किया। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम खान दुरानी ने बन्नू के इलाके में तखेल में गैस फराहमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। बजट में बन्नू और जनूबी अजला की तरक्की और खुशहाली के मनसूबों के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। मनसूबों की तकमील से बन्नू और जनूबी अजला की आवाम का मेयार जिंदगी बेहतर होगा और आवाम को रोजगार मिलेगा। इससे कबल डिप्टी स्पीकर ने बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में गैस फराहमी के मनसूबों का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप ग्रुप और स्विट्जरलैंड के आला सदर वफ्द के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ। दोनों अतराफ ने दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी तबादलों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी नुमाइंदों ने स्विस वफ्द को बच्चों के हुकूक पर पार्लिमानी कॉकस और खवातीन पार्लिमानी कॉकस जैसे अहम इकदामात के बारे में आगाह किया। इजलास में मौसमियाती तब्दीली, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, तालीम, सेहत और IT सेक्टर जैसे मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मारूफ इंटरनेशनल टेक्सटाइल ब्रांड के वफ्द ने लाहौर में मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में कपास की बेहतरीन पैदावार के लिए काश्तकारों को मराद दी जा रही हैं। वफ्द को बताया गया कि मारूफ सनतकार गोहर एजाज ने पंजाब में कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं, जिनमें जाली बीज और जाली कीड़े मार अद्वियात का तदारुक शामिल है। मोहसिन नकवी ने कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को तमाम तरह सहूलियतें मुहैया की जाएंगी। पंजाब में इंडस्ट्री को मुनासिब नरखों पर बिजली की फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ से मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सरदार याकूब खान नासिर की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने कहा कि हम सब ने मिलकर सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करना है। इस हवाले से हुकूमत तमाम मुमकिना वसाइल बुरुएकार ला रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि खुसूसी अफराद दुनिया के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे अफराद के MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सहूलतों की फराहमी खुशाइंद है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कामरान खान टेसोरी ने कहा कि हम सबको खुसूसी अफराद का सहारा बनना चाहिए ताकि उन्हें एहसास कमतरी ना हो। खुसूसी अफराद को सहूलियात फराहम करके उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है। अजीम समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईधी को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अब्दुल सत्तार ईधी ने इंसानियत की खिदमत का रास्ता चुना और सारी ज़िंदगी मेहनत, लगन और फ़र्ज शनासी से इंसानियत की खिदमत की। मज़ीद तफसील कराची से नौरी नासिफ की इस रिपोर्ट में। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 में भारत के गांव बांटवा में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद वो अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए। शुरू ही से वो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार थे। 1957 में एशियन फ्लू की वबा के दौरान सिर्फ एक एम्बुलेंस और बहुत महदूद वसाइल होने के बावजूद उन्होंने मरीजों की देखभाल की, जिसे बेहद सराहा गया और अब्दुल सत्तार ईदी ने इस दौरान ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। वक्त के साथ साथ ये इदारा परवान चढ़ता गया। नर्सिंग होम्स, ओल्ड होम्स, यतीम बच्चों की कफालत, बेसहारा खवातीन के लिए शेल्टर होम समेत कई मराकज ईदी फाउंडेशन के तहत खोले गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। ईदी फाउंडेशन
फाउंडेशन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत के एतराफ में उन्हें बेशुमार मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर एजाज़ात से नवाजा गया। दिहाइयों तक दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 में 88 बरस की उम्र में चल बसे, लेकिन ईदी फाउंडेशन की सूरत में उनका लगाया हुआ पौधा तनावा दरख्त बनकर दुखी इंसानियत को आज भी साया फराहम कर रहा है और उसके समरात से लोग बड़ी तादाद में मुस्तफीद हो रहे हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, दुनिया में पौधों से सबसे बड़ा लफ्ज बनाने पर पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला तंसीर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। पौधे हमारे माहौल का अहम तरीन जुज़्व हैं, जिससे न सिर्फ हमारा माहौल सरसब्ज रहता है बल्कि ये ऑक्सीजन की फराहमी का भी अहम तरीन जरिया हैं। पौधों और दरख्तों की अहमियत उजागर करने के लिए बहावलपुर के कम सन तालिबे इल्मों अब्दुल्ला तंसीर और हैदर मुस्तफ़ा ने अनोखा तरीका इख्तियार किया। इन दो नौजवानों ने बहावलपुर में 1111 पौधों से दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज तकमील लिखा, जिस पर इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। मुझे और पाक से जमीन की पूरी टीम को निहायत ही फख्र है कि हमने 1111 पौधों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज पौधों के साथ लिखा। तकमील में 7 लफ्ज थे, हमने चौकिंग से तकमील चौक से लिखा, उसके बाद उसको हमने डिगअप किया प्लांट्स को सेफ्टी लगाने के लिए। एवरेज पर वर्ड हमारे 180 प्लांट्स आए। 130 स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट स्कूल से थे बहावलपुर में, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी थे और प्राइवेट स्कूल्स भी थे, उनको शामिल किया इस रिकॉर्ड के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस रिकॉर्ड का आगाज सुबह 9 बजे किया और 12 बजे हम लोगों का रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ। लफ्ज तकमील लिखने के लिए इन दो नौजवानों ने 1200 स्क्वायर फुट पर मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए। इन दोनों तालिबे इल्मों की इस काविश से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहावलपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कैडेट कॉलेज पंजकोर म्यारी तालीम और तरबियत का अहम इदारा है जो मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। इस हवाले से तलबा और उनके वालिदैन क्या एहसासात रखते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। मेरा बेटा यहाँ पे अमरा नासिर 10th क्लास में पढ़ता है। यहाँ से जब से दाखिला लिया है, दाखिला के बाद यहाँ से उसके अंदर काफी चेंजेस आ गए। सबसे बड़ी चेंजेस उसके साथ ये है कि वो 5 वक्त नमाज का पाबंद रहा है। मैंने अपने अंदर टाइम की पाबंदी करना सीखा है। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा हिस्सा लेना भी सीखा है। मैं कैडेट कॉलेज से पास होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कैडेट कॉलेज पंजगुर से पास आउट होकर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मुझे आर्मी का शौक है। हमारे पंजगुर में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था कि जिसमें मैं जाऊं और वहां से आर्मी ऑफिसर बनूं। और नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांची में मरीजों को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल खपलों में पहली बार लेप्रोस्कोपिक मशीन के जरिए कामयाब ऑपरेशन किया गया। तफसील बताएंगे मोहम्मद अली आलम। गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तदा इलाकों में जदीद और मयारी तबी सहूलियात की फराहमी के लिए सरहदी जिला गांचे के DHQ अस्पताल में पहली बार लेप्रोस्कोपिक मशीन के जरिए मरीजों की ऑपरेशन का इंतजाम किया गया है। यह बल्तिस्तान के किसी भी सरकारी अस्पताल में अपने नौयत का पहला प्रोजेक्ट है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू में माहिर डॉक्टरों की खुसूसी टीम ने गुर्दे के मरीज का कामयाब ऑपरेशन किया। जो फैसिलिटी आज DHQ हॉस्पिटल खपलू में इंस्टॉल हो चुका है उसे लेप्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। इसमें एक तो मरीज को पेन कम होता है, इंजरी कम होती है और आज ऑपरेशन किया तो कल इंशाल्लाह मरीज घर चला जाएगा। गांचे जैसे दूरअफ्तादा जिले में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों के इलाज मुआलजा यकीनन खुशाइन अमल है। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गांचे। स्विट्जरलैंड के शहर बासल में पाकिस्तानियों की तरफ से खुले आसमान तले ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। ईद मिलन की खास बात यह थी कि हर फैमिली अपने साथ लजीज खाने की एक डिश बनाकर लाई थी। ईद मिलन पार्टी में ख्वातीन की तरफ से खूबसूरत पाकिस्तानी कपड़ों, चूड़ियाँ और ज्वेलरी के स्टॉल भी लगाए गए, जिसके जरिए पाकिस्तानी सकाफत और रवायात को उजागर किया गया। ख्वातीन के रंग बिरंगे मलबूसात तवज्जो का मरकज बने रहे।
बच्चियों और ख्वातीन के लिए मेहंदी लगाने का खसूसी एहतमाम भी किया गया था। यहाँ पे बहुत मजा आया है, यहाँ पे बच्चों के साथ मेहंदी भी लगाई है, खेला भी है और बहुत अच्छा खाना भी था। दायरे खैर में रह के हमें पाकिस्तान की याद आ गई, तो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। ओपन एयर ईद मिलन जैसी तकरीबात से जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठे मिल बैठने का मौका मिलता है, वहां कम्युनिटी के दरमियान रवाबत भी मजबूत होते हैं। पार्टी में शरीक मर्दों और बच्चों के दरमियान क्रिकेट मैच भी खेला गया। बच्चों ने औरतों ने कुछ एंजॉय किया है, सब ने क्रिकेट खेली है, वॉलीबॉल खेला है, फुटबॉल खेला है और बहुत एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा लगा और बिल्कुल ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इसी तरह हमने ये कोशिश करते रहनी है कि यहाँ दियार गैर में रहते हुए एक दूसरे से मिलते रहें और आपस में ये जो मोहब्बत है और प्यार ये एक दूसरे का बांटते हैं। सब दोस्त जो हैं इधर माशाल्लाह आपस में मिलजुल कर ईद मना रहे हैं और ये हम दोस्तों ने जिन दोस्तों ने भी ये इंतजाम किया बहुत ही अच्छा किया और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ईद मिलन पार्टी में शरीक होने वाले न सिर्फ मजे मजे के बेहतरीन खानों से लुत्फ अंदोज हुए बल्कि खूब इंजॉय भी किया। शबीर अहमद खोखर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बासल, स्विट्जरलैंड। निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुशीर कंवर मोहम्मद दिलशाद ने रावलपिंडी में नाला लई और शहर के दूसरे नालों की सफाई का जायजा लिया। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद तनवीर ने ब्रीफिंग में बताया कि मानसून के दौरान हैवी मशीनरी और सॉफ्ट को अलर्ट रखने के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज है। स्टाफ को अलर्ट रखने के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर रावलपिंडी की ज़ेर निगरानी महकमा मौसमियात और ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नालों पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी हैं। अमरीका ने आलमी तशवीश को नज़रअंदाज करके यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का ऐलान किया है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि यूक्रेन को इसकी शदीद ज़रूरत है, इसलिए ये इकदाम उठाया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीका के फैसले का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने कहा है कि वो क्लस्टर बॉम्ब्स के इस्तेमाल के हामी नहीं है। क्लस्टर बॉम्ब्स के इस्तेमाल पर पाबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर 120 से ज़ायद ममालिक दस्तखत कर चुके हैं। उधर अमरीका ने अपने कीमियाई हथियारों के आखिरी जखीरे को भी तलफ कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मुझे ये ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि हमने कीमियाई हथियारों के जखीरे के आखिरी हिस्से को भी तबाह कर दिया है। इस इक़दाम को दुनिया में बड़े पैमाने पर हलाकतों का सबब बनने वाले हथियारों के जखीरे के खात्मे की जानिब अहम कदम समझा जा रहा है। 1997 के कीमियाई हथियारों के बैन अक़वामी कन्वेंशन के तहत अमरीका और दीगर दस्तखत करने वाले ममालिक 30 सितंबर 2023 तक अपने कीमियाई हथियार तल्फ करने के पाबंद हैं। कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल पहले ही जंग अज़ीम में किया गया था, जिसमें इन हथियारों से 1 लाख से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से यूक्रेन के हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस्तांबुल में मुलाकात की। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि क़याम अमन में किसी भी फरीक की शिकस्त नहीं होती। तज़ादात के बावजूद रूस और यूक्रेन के दरमियान क़याम अमन की वापसी हमारी दरीना ख्वाहिश है। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया ने रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिशें की हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। शहर में मुसलसल कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश होती रही। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और निकासी याब के अमल का जायज़ा लिया। तफसील मौज़िमुद्दीन से। बागों के शहर लाहौर में सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई, जो दोपहर तक जारी रही। बारिश के बायस कुछ मुकामात पर पानी खड़ा हो गया, जिसकी बरवक्त निकासी को यकीनी बनाया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रह सकता है। शहर में सबसे ज्यादा बारिश नितर टाउन और जौहर टाउन के इलाके में रिकॉर्ड की गई, जबकि वासा जिला इंतजामिया का अमला हाई अलर्ट रहा और हैवी मशीनरी की मदद से निकासियाब के अमल को मुकम्मल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बारिश में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब के काम का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कलमा चौक अंडरपास में निकासियाब के लिए ज़ैर तामीर ड्रेन का मुआयना किया और जल्द तकमील की हिदायत जारी की। इस मौके पर वज़ीर आला ने अंडरपास पर निकासियाब के काम में मसरूफ़ वर्कर से मुलाकात की और उन्हें शाबाशी दी। सूबा भर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां PDMA की जानिब से बारिशों और मुमकिन सैलाब के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल PDMA ने कहा कि मजीद बारिशों का इम्कान मौजूद है, अलबत्ता फिलहाल दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि सूबाई कंट्रोल रूम से तमाम तर सूरत हाल से मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए, जबकि इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहे। मौज़मुद्दीन,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों की वजह से बाज़ इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। लेवी ज़राए के मुताबिक बारिश के बायस नदी नालों में तोग़यानी के साथ नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले कोहलू सिब्बी शाहराह के मुख्तलिफ हिस्से बहा कर ले गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हुई है। ज़िला जाफराबाद में भी तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तेज़ बारिश के बायस मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है और बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। नाज़रीन।